بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أطين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی وزدنی علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. آمین ثم آمین. پچھلی بار ہم لوگوں نے رضاعت کے حوالے سے پڑھا تھا، جس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ رضائی جس طرح نسبی رشتے اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، اسی طرح رضائی رشتے بھی حرام کیے ہیں. تو رضاعت ہوتی کیسے ہے، رضائی کہتے کسے ہیں؟ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ فیڈ کرے گا، وہ کم از کم 5 بار اسے فیڈ کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی عورت نے کسی بھی بچے کو اگر 5 بار دودھ پلایا ہے تو 5 بار دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رضائی ماں بن جاتی ہے. پھر اسی طرح بہن رضائی بن جائے گی، رضائی پھپھی بھی بن جائے گی، رضائی خالہ بھی بن جائے گی، رضائی چچی بھی بن جائے گی. یعنی یہ سارے رضائی رشتے پھر بن جائیں گے. یعنی رضاعت کیسے ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن بتا نہیں سکی تھی، تو آج میں نے کہا کلیئر کر دوں کہ رضاعت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ کم از کم 5 بار دودھ پیا ہو. 5 بار سے کم بار دودھ پیا، 1 بار یا 2 بار، تو اس سے رضاعت نہیں ہوگی. رضاعت کے لیے 5 بار دودھ پلانا ضروری ہے. 5واں پارہ آج الحمدللہ ہم شروع کریں گے. سورۃ نساء آیت نمبر 24. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے.
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو، اس حال میں کہ تم ان سے نکاح کرنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر ضرور ادا کرو جو تم نے مقرر کر رکھے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَغَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور کمال حکمت بھی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک مرد کے لیے کون کون سی عورت کس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس میں سے آگے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں پہلے شادی شدہ ہو جائیں وہ عورتیں بھی ایک مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہیں جب تک کہ ان کا خاوند یا تو انہیں طلاق دے دے یا پھر ان کا خاوند فوت ہو جائے، اور وہ اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ یعنی اگر عورت شادی شدہ ہے اور وہ اسے کہے کہ تم اس سے شادی کی بجائے آپ میرے سے شادی کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شادی شدہ عورت بھی اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ یا تو اس کا خاوند وفات پا جائے یا پھر اس کا خاوند اس کو طلاق دے دے۔ دوسری بات آگے اللہ کیا کر رہا ہے، مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں یا پھر طلاق یافتہ عورتیں، ان سے فوری نکاح کا حکم نہیں ہے۔ جس کی طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں مقرر کر دی کہ وہ طلاق کے بعد 3 ماہ تک انتظار کرے، اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے گی جو عدت بنتی ہے اس کی، اس کے بعد وہ کسی اور خاوند سے شادی کرے گی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے غم میں ہے تو غم کی وجہ سے اس کے اندر کے معاملات ذرا سست کام کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کو تکلیف ہے یا آپ بیمار ہیں تو آپ گھر کے کام سلو سے کریں گی، ایکٹیو ہو کے نہیں کریں گی۔ اگر ایک عورت ایکٹیو ہے تو پھر وہ جلدی اس کام کو کر لے گی۔ اسی طرح طلاق یافتہ عورت جو ہے جس نے طلاق لی ہے یا جس کو خاوند نے طلاق دی ہے اس میں اتنا غم نہیں ہوتا جتنا غم خاوند کی وفات والی کو ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اس کا خاوند وفات پا گیا تو اس کو غم زیادہ ہے بنسبت اس غم کے جو طلاق کی صورت میں ہے یا خلا کی صورت میں ہے۔ خلا کی صورت میں ہے تو وہ طلاق اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے۔ خلا کی صورت میں پھر عدت کم کر دی گئی ہے۔ خلا کی صورت میں 1 مہینہ عدت ہے، طلاق کی صورت میں 3 مہینے عدت ہے، بیوہ ہونے کی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ ان کی عدتوں میں فرق اس وجہ سے ہے کہ عورت کے اعضاء، اندر کے اعضاء جو ہیں، جسمانی اس کا نظام جو ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ کے اندر کیسے ہضم ہوتا ہے، کیسے وہ کھانا آپ کے جسم میں خون بناتا ہے، کیسے وہ آپ کو طاقت دیتا ہے یا کیسے وہ فاضل مادہ بن کے باہر نکلتا ہے، آپ کو تو نہیں پتا نا۔ اندر ایک مشینری ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو وہ آٹومیٹک مشینری کام کر کے خون بھی بناتی ہے، آپ کو طاقت بھی دیتی ہے، فاضل مادہ بنا کے باقی باہر بھی نکال دیتی ہے۔ تو اسی طرح اندر کا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے ساتھ میلاد کی صورت میں رکھا ہے۔ تو ایک جو خلا لیتی ہے وہ تو خوشی خود لے رہی ہے نا، خلا عورت خود لیتی ہے کیونکہ وہ اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے اندر وہ جو ملاپ والا نظام اللہ نے رکھا ہے وہ بہت جلدی متحرک ہو جاتا ہے، اور کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو متحرک ہونے کی وجہ سے اسے 1 مہینے کے بعد شادی کی اجازت دے دی۔ اب ہے طلاق یافتہ عورت، تو طلاق دینے کے بعد بھی اس کے اوپر غم ہی ہوگا، ظاہر خاوند نے طلاق دی ہے تو غم کی وجہ سے اس کا وہ نظام وہ اتنے جلدی متحرک نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے خاوند سے شادی کے لیے بہتر ہو سکے، تو اس کو بہتر ہونے کے لیے اس نظام کو 3 مہینوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت 3 مہینے رکھ دی۔ اسی طرح پھر جب جس کا خاوند وفات پا گیا ہے اس کا وہ نظام اور بھی سلو کام کرتا ہے، اور بھی آہستہ کام کرتا ہے، تو وہ ایک دوسرے خاوند کے لیے اپنے آپ کو متحرک ثابت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن اسے ضرورت ہے تاکہ وہ اگلے خاوند سے شادی کر کے اس کے ساتھ اپنے ملاپ کا سیٹ اپ بنا سکے۔ تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے اندر کا، اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نظام کے لیے دوسرا خاوند اس کو کب ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عدتوں
مرتبوں में फर्क रख दिया कि ये अपनी अपनी इद्दत गुजारने के बाद दूसरे खावन से शादी कर सकती हैं। अब यहाँ पर आता है कि मगर वो औरत जो तुम्हारी लोंडी है, लोंडी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लोंडी बनती कैसे है। जंग के मैदान में काफिर मुसलमानों से लड़ते हैं और मुसलमान काफिरों से लड़ते हैं, तो काफिर अपनी औरतें भी ले आते थे, मुसलमान भी अपनी औरतें लेकर जाते थे। तो काफिरों की औरतें जिस वक्त काफिर जंग हार जाते थे, जाहिर बात है हारने की सूरत में ना वो अपने घर बार को घर का सामान देखते थे, ना अपनी बीवी बच्चों का देखते थे, भागने की करता है। जब उसको अपनी जान पे पड़ती है तो वो खुद भागने की करता है। फिर जब वो भाग जाता है तो पीछे माल भी और पीछे औरतें और बच्चे भी वो मुसलमानों के हाथ लग जाते थे। अब वो क्या होते थे, माले गनीमत। तो वो जो औरतें मुसलमानों की कैद में आ जाती थी, मुसलमानों के अंडर में आ जाती थी, तो वो वहां पे जाकर अमीर उनको क्या बना देता था कि ये काफिर औरत तुम्हारी लोंडी है, ये काफिर औरत तुम्हारी लोंडी है। जैसे माल तकसीम किया जाता था, इसी तरह औरतें भी तकसीम हो जाती थी कि ये फलां साहबी के हिस्से में, ये फलां के है, ये फलां के हिस्से में है। अब वो सहाबी जिसको वो लोंडी दे दी जाती, वो काफिर औरत दे दी जाती थी, वो उसके साथ उससे कराहत महसूस करते थे कि ये तो काफिर औरत है, पीछे इसका खामन काफिर है, तो मैं इसके साथ ताल्लुक कैसे कर सकता हूँ। जबकि अल्लाह ताला ने एक लोंडी के साथ मेलाप का वही तरीका अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया था बगैर निकाह के। मुसलमान औरत के साथ निकाह की सूरत में वो उसकी बीवी बनती है और उसके साथ वो मिलाप कर सकता है, लेकिन लोंडी की सूरत में बगैर निकाह के भी उससे मिलाप हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुद्दत कितनी इंतजार करनी पड़ेगी, एक हैज। जब तक उसे मेंसेस नहीं आते, अब वो काफिर की लोंडी, काफिर की औरत मुसलमान के पास आई है, वो उस वक्त तक उसको अपने लिए जायज और हलाल नहीं समझेगा जब तक उससे मेंसेस आने के बाद वो गुस्ल नहीं कर लेती, तब तक वो उससे अपना मिलाप नहीं बहाल कर सकता। क्यों? ये अल्लाह ताला ने काफिर औरत के मुसलमान के अंडर में आने के बाद, लोंडी बनने के बाद उसका भी एक वक्त मुतय्यन कर दिया ताकि साफ पता चल जाए। मेंसेस आते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं है। अगर मेंसेस नहीं आते तो पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने वाली है। तो ये अल्लाह ताला ने एक हैज क्यों रखा है, ताकि पता चल जाए कि काफिर औरत के पेट में काफिर शोहर का बच्चा तो नहीं है। अगर उसे हैज आ जाता है, वो क्लियर हो जाती है, तो फिर वो मुसलमान उसके साथ लोंडी का ताल्लुक, यानी लोंडी बनी हुई, उसके साथ वो मिलाप कर सकता है, जो बगैर निकाह के अल्लाह ताला ने लोंडी के साथ मिलाप का हुक्म दिया है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए, चारों की कैफियत अलग अलग मैंने आपको बता दी, तलाक याफ्ता औरत की भी, और खुला लेने वाली औरत की सूरत में भी, और बेवा औरत की सूरत में भी, और काफिर औरत की सूरत में भी बता दिया कि वो एक मुसलमान के लिए कब हलाल होगी, जब तक उसे एक हैज या मेंसेस नहीं आ जाते। मेंसेस आने के बाद, गुस्ल करने के बाद, वो अपने मुसलमान मर्द के लिए, जिसका वो मालिक, जो मालिक बन चुका है, उसके लिए वो फिर हलाल हो जाती है बगैर निकाह के भी। यानी हमारा मुसलमान मर्द, उससे निकाह की उसे जरूरत नहीं है, वो उससे मिलाप कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने आगे क्या लिखा है इनके बारे में, वो अहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन। ये कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ये हलाल तो कर दी है कि तुम इनसे निकाह कर सकते हो। तो अब इनसे निकाह करने की सूरत में तुमने क्या करना है, जिन औरतों से शादी की सूरत में शादी करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, उनके अलावा बाकी औरतों से मुसलमान जब निकाह करेगा तो निकाह की अल्लाह ताला ने कुछ शराइत रखी हैं जो इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है। एक मर्द एक औरत से शादी करने के लिए 4 शर्तें हैं जिनके मुताबिक वो उस औरत से शादी कर सकता है। तो उसमें से पहली क्या है, अन तब्तगू मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन। आपका सबसे पहला क्या मतलब है यहाँ पे, कि अपने मालों के बदले तलब करो, यानी इजाब किसे कहते हैं, यानी दोनों तरफ से हाँ की सूरत हो, इजाब कबूल हो। भाई आप मेरे से शादी करना चाहते हैं, आप मेरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों का आपस में, यानी निकाह के लिए पहली शर्त क्या है, लड़का और लड़की का राजी होना। अगर लड़का राजी है, लड़की राजी नहीं है, तो निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की राजी है, लड़का राजी नहीं है, तो निकाह नहीं हो सकता। जबरन निकाह करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ बात का ये होता है कि लड़का शादी करना नहीं चाहता, बाप उसे क्या कहता है, यहाँ शादी नहीं करोगे तो फिर मैं अपनी जायदाद से भी आग कर दूंगा, फिर मेरे घर से भी निकल जाओ। अब लड़का मजबूरन सूरत में निकाह कर रहा होता है, ये सही नहीं।
उसकी मर्जी हो, क्योंकि निकाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शर्त रखी है उसमें ये है कि लड़की से भी इजाजत तलब करो और लड़के से भी पूछो कि क्या फलां जगह तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, तुम्हें कोई उज़र तो नहीं है, तुम फलां जगह निकाह करना चाहते हो, और लड़की से भी पूछो। तो सहाबियात और सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, लड़की कैसे हाँ में जवाब देगी, लड़की तो शर्मीली होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी चुप ही उसका इकरार है। अगर वो उस रिश्ते के ऊपर चुप नहीं है, वो बगावत करती है, तो ऑटोमेटिकली वो उस रिश्ते से इनकार कर देगी। उसका रवैया, उसका अंदाज, उसका फेस तुम्हें बता देगा कि वो उस जगह पर शादी के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो नहीं होती तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस अपने दिखा देती है, अपना रिएक्शन दिखा देती है, खाना खाना छोड़ देती है या घर में कोई और मसाइल पैदा कर देती है, तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि लड़की राजी नहीं है। और आज ये नौबत नहीं है, आज लड़कियां मुंह पे ही कह देती है हमने यहाँ शादी नहीं करनी। ये शर्म और हया का एक तकाजा है। एक लड़की के अंदर इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट ये ना कह दे कि मैंने यहाँ शादी नहीं करनी। हाँ, अगर दोस्त से कह रही है, बहन से कह रही है या अम्मी को अपना दोस्त बनाया हुआ है, उनके साथ खुल के बात कर लेती है तो एक अलग बात है। अगर वालिद या कोई मर्द पूछ रहा है, उसके सामने डायरेक्ट कह देना मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, तो ये शर्म और हया का एक हिस्सा भी नहीं है। उससे बेहतर यह है कि वो किसी औरत को अपना साथी बना के उसके साथ बात करे कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती या मैं यहाँ करना चाहती हूँ। लड़की को इख्तियार है कि वो जरूर अपनी रजामंदी जाहिर करे। ये क्या है, निकाह की पहली शर्त है। दूसरी शर्त अल्लाह ताला ने क्या बताई है, अन तब्तगू बिअमवालिकुम, ये कि तुम उन्हें माल दो। माल कौन सा, हक महर। हक महर देना जरूरी है। जितना माल की इस्तात है उसी माल में से उसको हक महर दिया जाएगा, जो कि उसके लिए निकाह का दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या कही अल्लाह ताला ने कि उन औरतों को तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए उसे बीवी लाना मकसद हो, ना कि उनके साथ सिर्फ बदकारी करना, गैर मुसाफिर, ना कि सिर्फ उनके साथ बदकारी करना। यहाँ क्या होता था, जब इस्लाम नहीं था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें नहीं बताई, तो मक्का के अंदर ये होता था कुछ टाइम के लिए निकाह कर लेते, उसके बाद उसे तलाक दे देते थे। फिर किसी को 2 दिन के लिए अपने पास रखते, किसी को 4 दिन के लिए रखते, किसी को कुछ दिनों के लिए रखते। तो ये चीज अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। लेकिन ये जो फमस्तमता तुम आगे लफ्ज आ रहा है, इससे अभी भी शिया लोग जो है ना फायदा उठा रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, निकाह मुत्ता, यानी 1 रात का निकाह है, 2 रातों का निकाह है, 4 रातों का निकाह है, 4 महीने का एग्रीमेंट है। निकाह करते वक्त ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। निकाह कर रहे हैं, सारी जिंदगी के लिए उसे अपनी बीवी बना रहे हैं, बाद में मसाइल होते हैं, तलाक हो जाती है, वो एक अलग बात है। निकाह करते वक्त ये जहन नहीं होना चाहिए कि मैं इसे 1 रात के लिए लेके जा रहा हूँ, 4 महीने के लिए लेके जा रहा हूँ, 2 महीने के लिए रखूंगा फिर इसे छोड़ दूंगा। ये चीज निकाह के लिए जरूरी नहीं है। निकाह के लिए ये चीज जरूरी है कि तुम अपने जहन में ये रखो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इसको अपनी बीवी बना के जा रहा हूँ। अगर जहन में ये होगा कि 1 रात के लिए, 2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 2, 4, 6 दिनों के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, निकाह मुत्ता कहा जाता है, जो कि इस्लाम में हराम है। लेकिन शिया हजरात अभी भी इस निकाह को जायज समझते हैं। वो ये करते हैं कि एक शाम गरीबा के नाम से एक महफिल से जाते हैं, उसके अंदर लाइटें बंद कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, मर्द और औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। फिर मर्द के हाथ में जो औरत लगती है, उनके ये है कि आज जो औरत हमारे हाथ लग गई, वो औरत आज के लिए, रात के लिए मेरी बीवी बन जाएगी, सुबह होते ही उसको तलाक दे देंगे। इसको कहते हैं निकाह मुत्ता, यानी चाहे 1 रात के लिए, चाहे 5 रातों के लिए, वो बात क्या आ गई, निकाह मुत्ता की आ गई। अब वो तलाक जो दे देते हैं, यानी अगर उस रात अंधेरे में उसने अपनी बहन का हाथ भी पकड़ा है, तो उसके लिए उसके साथ बीवी वाला ताल्लुक करना उसके लिए जायज समझते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। लेकिन इस्लाम से पहले इसको जायज समझा जाता था। यानी ये आया कहां से है, ये इस्लाम आने से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, कुरान नाजिल होने से पहले ये जायज था। वो इसे जायज समझते थे, ठीक है ना, वो इसे जायज समझते थे कि 2 दिन के लिए इसे अपनी बीवी बनाएंगे, फिर एक और औरत कर लेंगे, इसको तलाक दे देंगे। ये क्या होता था, उनके जहन में ये होता था कि आए रोज शादियां होती रहेंगी, आए रोज नई नई औरतें हमारे पास होंगी और हम उनसे अपने ताल्लुक कायम करके जब दिल भर जाएगा तो उसको तलाक दे देंगे। तो अल्लाह ताला ने निकाह के लिए तीसरी शर्त यही रखी है कि तुम्हारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए उसे बीवी बनाना मकसद हो। ये नहीं हो कि इससे जब मेरा दिल भर जाएगा, जब इससे मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो मैं कोई और औरत ले आऊंगा। ये चीज अल्लाह ताला ने मना कर दी। ये चीज जिना में होती है, इंसान के निकाह में ये चीज जायज नहीं। और निकाह जिना क्या है, हराम।
तो मुत्ता निकाह मुत्ता भी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को, देखे शिया लोग किसको अपना सबसे बेहतर समझते हैं, हजरत अली को बेहतर समझते हैं ना, तो हजरत अली को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन निकाह मुत्ता और पालतू गधों के गोश्त खाने से मना कर दिया। पता चला कि खैबर के दिन से पहले तक, खैबर की जंग से पहले तक पालतू गधे जो घरों में पाले जाते थे उनका गोश्त खाना भी हलाल था और निकाह मुत्ता करना भी हलाल था। लेकिन जंगे खैबर के मौका पर, खैबर वाले दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा कि तुम ऐलान कर दो कि आज के बाद निकाह मुत्ता भी हलाल नहीं है और पालतू गधों का गोश्त खाना भी हलाल नहीं है। दूसरी हदीस में आता है कि सैयदना सुबरा बिन मुअव्वद कहते हैं कि फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने उस मौका पर फरमाया, लोगों में तुम्हें औरतों से मुत्ता की इजाजत दी थी, मगर अब अल्लाह ताला ने इसे कयामत के दिन तक के लिए हराम करार दिया है। यानी जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था, तुम्हारे अंदर निकाह मुत्ता होता था, तो मैंने भी तुम्हें इजाजत दे दी थी। लेकिन फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाज़ो नसीहत को मुशरिकीन मक्का के अंदर करते हुए मक्का के लोगों के अंदर कहा कि आज के बाद, इस्लाम आने के बाद निकाह मुत्ता जो है अब हलाल नहीं है। अब जिनके पास मुत्ता वाली औरतें हैं वो उन्हें छोड़ दें और जो माल तुमने उन्हें दिया है उससे वापस भी ना ले। निकाह मुत्ता के वक्त भी यानी निकाह तो नहीं होता, मुत्ता ही होता है। मुत्ता का मकसद ये होता है कि बस निकाह हो गया, यानी एक रात का एग्रीमेंट होता है। जैसे मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, आप कहेंगे ठीक है, आपस में मरी हो गई, तो उनका भी एग्रीमेंट होता है जिसे वो निकाह समझ लेते हैं और उसे मुत्ता कहते हैं। तो उस वक्त भी उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट देना जरूरी होता है। यानी जैसे हमारा है ना निकाह के वक्त हक महर देना जरूरी है, तो उस वक्त उनका भी कोई ना कोई चीज देना जरूरी है। हमारे यहाँ हक महर देने के बाद भी दूल्हे को कहा जाता है कि जब दुल्हन के पास जाएगा तो तब भी क्या देना है, कोई तोहफा देना है। असल तोहफा उसने दे दिया है हक महर की सूरत में, अब अगर वो ना भी दे तो कोई जरूरी नहीं है, अब लाजिम नहीं है, ये निकाह का हिस्सा नहीं है कि अब जब वो बीवी के पास जाएगा तो लाजमी एक और तोहफा लेकर जाएगा। हक महर ही उसकी बीवी का तोहफा है और वो ही उसके लिए उसे उसके पास जाने से पहले अदा करना होगा। ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलाप भी कर ले तो बाद में देता रहूंगा। हक महर बाद में नहीं दिया जाता, हक महर पहले ही दिया जाएगा। पिछली बार में मैंने आपको बताया जो हक महर मौजूद है वही हक महर है, जो गैर मुअज्जल लिखवाया जाता है वो हक महर नहीं होता। अब जिनके पास मुत्ता वाली औरतें हैं, आप सल्लल्लाहु ने मक्का के फतह के मौका पर क्या कहा, उन्हें छोड़ दो। अब आपने उन्हें जो गिफ्ट, जो हक महर जो चीज दी थी वो उनसे वापस भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो जो तुमने उनको देकर अपने लिए हलाल किया था, अब तुमने उसे अपने लिए हलाल तो करने के बाद उसे इस्तेमाल कर लिया, अब इस्तेमाल करने के बाद जो तोहफा दिया था वो तुम वापस नहीं ले सकते। तो ये तीन चीजें थी, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातून्ना उजूरहुन्ना, बस वो मुत्ता वाली औरतें जिन्हें तुमने इस्तेमाल किया, उन्हें जो कुछ तुमने दिया था उनसे वापस नहीं ले सकते। वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, और तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम मुकर्रर कर लेने के बाद आपस में राजी हो जाओ। ये बात मैंने पिछली दफा बताई थी कि हक महर देने के बाद मियाँ बीवी में एग्रीमेंट हो जाता है, बीवी कहती चलो मैंने आपको हक महर सारा वापस दे दिया, ये एग्रीमेंट में दोनों राजी हैं इसके ऊपर, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर उस हक महर को लेने में कोई गुनाह मर्द के लिए नहीं है। अगर बीवी राजी नहीं है, मर्द जबरदस्ती हक महर ले लेता है तो तब मर्द के लिए गुनाह है। अगर बीवी राजी है हक महर देने पर तो मर्द के लिए फिर गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला भी है और कमाल हिकमत वाला भी है। यानी ये सारी बातें अल्लाह बेहतर जानता था कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं है, अल्लाह ने उनको नाफिज कर दिया। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात, और तुम में से जो माली लिहाज से ताकत ना रखे कि आजाद मोमिन औरतों से निकाह करे, तो उनमें से जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों तुम्हारी मोमिन लोडियों से निकाह कर ले। अब देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ना, जैसे भूख रखी है, खाना खाना जरूरी है ना, खाना खाने के बगैर नहीं रह सकते, तो इसी तरह एक बालिग मर्द के लिए भी बगैर बीवी के रहना बहुत मुश्किल है। यानी अब वो बलूगत में पहुंच चुका है तो उसको बीवी की जरूरत है, जैसे हमें खाने की जरूरत है उसे बीवी की जरूरत है। अब वो बीवी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है माली लिहाज से कि वो कहीं शादी कर सके, क्योंकि हक महर देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह ताला ने उसका भी मामला
ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसको भी अल्लाह ताला ने मजीद एक और रास्ता बता दिया। वो कौन सा रास्ता बताया कि गरीब और मोहताजी की वजह से अगर तुम आजाद मुसलमान औरत से निकाह नहीं कर सकते और फिर तुम्हें जिना का डर हो कि मेरे पास बीवी नहीं है तो गलत रास्ते की तरफ जाना ना पड़ जाए, तो इससे बेहतर, जिना से बेहतर तुम्हारे लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान लोंडी से शादी की तुम्हें इजाजत दे दी। अब लोंडी आई कौन थी? काफिर औरत थी ना। काफिर औरत आने के बाद अब जाहिर बात है मुसलमान के पास है, मुसलमान के साथ रहते रहते वो मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लेती है, इस्लाम उसे पसंद आ जाता है, वो मुसलमान बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोंडी मुसलमान हो जाए तो तुम उससे निकाह कर लो, क्योंकि लोंडी से निकाह की सूरत में वो मामला नहीं है जो आजाद औरत के सूरत में अल्लाह ताला ने रखा है। लोंडी का भी हक महर तो मुकर्रर होगा, लेकिन आजाद की निस्बत कम। जैसे आप एक अमीर घराने में शादी करेंगे, हक महर ज्यादा होगा, एक गरीब घराने में शादी होगी तो क्या हो जाएगा? हक महर कम हो जाएगा। इसी तरह एक आजाद औरत का हक महर ज्यादा बनता है बनिस्बत लोंडी के। लोंडी को कुछ भी दे दिया जाए, कोई चीज भी दे दी जाए, यानी अगर वो गरीब है, मोहताज है, हल्का फुल्का भी कुछ दे देगा तो उसके घर वाले मान जाएंगे बनिस्बत आजाद औरत के। आजाद औरत के घर वाले जरा मुश्किल से मानते हैं। तो गरीब और मोहताज को अल्लाह ताला ने लोंडी के साथ निकाह करने का हुक्म दिया है कि मुसलमान लोंडी से तुम शादी कर लो, लेकिन मुसलमान लोंडी से शादी करते हुए भी तुम्हें क्या करना है? लोंडी के मालिक की इजाजत जरूरी है। लोंडी से निकाह करते वक्त भी, अब जैसे एक लड़की से निकाह कर रहे हैं तो उसके वालिद की इजाजत जरूरी है ना। बगैर वालिद की इजाजत के वली के निकाह नहीं होता। वली कौन है? वालिद है, वालिद नहीं है तो भाई है, भाई नहीं है तो चचा मामा है, चचा मामा भी नहीं है तो मोहल्ले का जो सरबराह होता है उसको वली बना दिया जाता है। तो अगर ये आजाद औरत के लिए है तो लोंडी की सूरत में भी वली कौन है? लोंडी का मालिक। अगर लोंडी का मालिक एक औरत निकल आती है, औरत के पास भी लोंडी आती थी, ठीक है ना, जैसे बाज का तो वही ये तुम्हारी लोंडी है, तुम इससे घर के काम लो जितना मर्जी है इससे, यानी जैसे हमारे यहाँ मासियां आती हैं काम करने के लिए, तो उस वक्त वो लोंडियां उनके घरों के काम करती थी। जैसा कि हजरत आयशा के बारे में जब तोहमत लगाई गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से, सहाबा से पूछा था कि तुम हजरत आयशा के बारे में क्या कहते हो, तो एक साहबी ने कहा था कि आप लोंडी बरीरा से पूछ ले, जो कि हजरत आयशा के पास मौजूद होती है। तो हजरत आयशा की लोंडी थी बरीरा, जो उनके घर के कामों में उनके साथ देती थी। तो अगर लोंडी का मालिक एक औरत निकलती है तो क्या वो लोंडी से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। लोंडी की मालिक अगर औरत निकलती है तो शादी वो नहीं कर सकती। अलबत्ता फिर उस लोंडी के मालिक का खावंद, ठीक है ना, वो औरत जिसके मालिक है जो, उसका खावंद वो वली बनेगा। औरत वली नहीं बनेगी, उसका खावंद वली बनेगा। यानी मेरी लोंडी है और मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ तो मैं वली नहीं बन सकती, मेरा खावंद उसका वली बन जाएगा और वो उसकी शादी करेगा। तो यानी लोंडी के लिए भी वली का होना जरूरी है, और वली कौन है? जो कि उसका मालिक है। अब वो गुलाम या गुरबत या मोहताज शख्स उस लोंडी से निकाह करेगा तो लोंडी से निकाह करते हुए भी वली की होना क्यों जरूरी कहा? ताकि उसका निकाह भी इलानिया हो, छुपा हुआ निकाह ना हो, लोगों को पता हो कि इसका निकाह हो रहा है। हमें शादी पे बुलाया जाता है, असल में हमें ऐलान करने के लिए, हमें गवाह बनाने के लिए कि इसकी शादी इसके साथ हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ हम खाने के लिए जाते हैं। असल मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि इसकी शादी इसके साथ हो रही है, हम क्या हो जाते हैं? उस वक्त गवाह बन जाते हैं। तो एक लोंडी का भी जब ऐलानिया निकाह होगा तो फिर क्या होगा? लोग गवाह की सूरत में मौजूद होंगे, तो लोगों को पता होगा कि ये जिना नहीं कर रहे, इनका तो निकाह हो चुका है, ये आपस में मियां बीवी हैं। तो अल्लाह ताला ने एक मोमिन मर्द को एक लोंडी के साथ, मुसलमान लोंडी के साथ निकाह करने के लिए तरजीहात दी हैं। वल्लाहु आलम बिईमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। अब कितना वो मोमिन बने, हम कहें कि मोमिन है, नेकोकार है, अब वो गलत काम कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने एक भूख रखी है, वो कैसे मिटाएगा? जायज तरीके से मिटाएगा। अगर जायज तरीके से उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे ईमानों को जानता हूं। अब आप देख लें, अंदाजा करें कि अगर आपको एक चीज मिली हुई है, थोड़ी देर बाद कोई कहता है अगर आप तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें इससे भी बेहतर चीज दूंगी, आपने बिक जाना कि नहीं बिकना?
आपने कहा ठीक है ये बड़ी ज्यादा चीज मिली है, चलो ठीक है मैं उसको छोड़ दूंगी। मिसाल के तौर पर आप मेरी स्टूडेंट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको एक और बाजी मिलती है, वो कहती है मैं आपको इससे अच्छा पढ़ाऊंगी, आपके साथ प्यार से भी बोलूंगी, आपको मारूंगी भी नहीं। आपने क्या करना है फौरन, हालांकि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, लेकिन जब उसने कहा मारूंगी भी नहीं, सजा भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, आपने क्या कहना, उस बाजी के पास पढ़ना है। बिक गए ना आप। ईमान हमारा कितना थोड़ा है, बिक जाते हैं हम फौरन। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारे ईमानों को जानता हूं, अगर तुम्हें हलाल चीज ना मिली तो तुम हराम चीज की तरफ भी जा सकते हो। तो हराम चीज से बचने के लिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि एक गुलाम लोंडी से तुम निकाह कर लो। फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वातूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफी मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अक़दान। तुम्हारा बाज से है, यानी ये ना समझो कि वो लोंडी है, छोटी सी है, अदना सी है, तुम बाज सी से हो, कोई अमीर है कोई गरीब है, एक जैसे ही हो, सारे आपस में एक जैसे हो। तो उनसे उनके मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो और उन्हें उनके मेहर अच्छे तरीके से दो, जबकि वो निकाह में लाई गई हैं, बदकारी की नियत से नहीं लाई गई। ना ही तुम उनसे छुपी यारियां करो कि अब तुम मेरी बन जाओ, मेरे साथ दोस्ती कर लो, 4 दिन उसके पास अपने पास रखो, फिर उसे छोड़ दो। ऐसा मकसद उसके साथ भी तुम्हारा नहीं हो। यानी लोंडी के साथ भी एलानिया निकाह करना है, उसे हक मेहर भी देना है और उससे बदकारी की नियत से निकाह नहीं करना, और ना ही उससे छुपा हुआ यार बनाना है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये मेरी क्या है, लड़के कहते हैं ये मेरी गर्ल फ्रेंड है, और लड़की कहती है ये मेरा बॉय फ्रेंड है। होता है ना, कॉलेजों में तो ये चीजें ज्यादा आपको सुनने में मिल जाती हैं। फिर आप में से अगर किसी का इस्लामी घराना नहीं है तो कजनों को बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, छुपी हुई यारियां, ये अल्लाह ताला मना कर रहा है। अल्लाह कह रहा है छुपी हुई यारियां नहीं बनानी। जिसको दोस्त बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको बनाओ, जिसको दोस्त बनाने का हुक्म नहीं दिया उससे दोस्ती नहीं कर सकते। एक मर्द की एक औरत से, एक लड़के की एक लड़की से, लड़की के लड़के से दोस्ती नहीं हो सकती, सिवाय इस सूरत में कि निकाह के बाद दोस्ती भी हो, मोहब्बत भी हो, प्यार भी हो, मियां बीवी भी हो, शादी भी हो, सब कुछ हो। निकाह से पहले एक लड़का लड़की आपस में छुपी हुई दोस्तियां नहीं कर सकता। निकलते कॉलेजों के नाम पे हैं, आगे जाकर बॉयफ्रेंड को टाइम दे के लॉनों में, प्लॉटों में, किसी जगह पर चले जाते हैं, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम में इस चीज को पसंद ना एक आजाद औरत के साथ किया है, ना ही एक गुलाम लोंडी के साथ अल्लाह ताला ने छुपी हुई दोस्तियां करने का हुक्म दिया है। फैजा उहसिन्ना फइन अतैना बिफाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुकी हैं तो अगर किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर सजा का निस्फ है। यानी अगर लोंडी तुम उससे निकाह कर लेते हो, निकाह करने के बाद अगर वो भी तुम्हारी बजाय किसी और से गलत राब्ते इख्तियार कर लेती है, किसी और तरफ जिना के लिए मुंह मारती है, हराम काम की तरफ जाती है, क्योंकि अब तो निकाह हो चुका है, निकाह के बाद उसे जायज नहीं था कि किसी मर्द के पास जाती, अगर वो भी ऐसा कर लेती है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। तो आजाद औरत के बदले में उसकी सजा, उसका आजाब निस्फ है, आधी सजा है। आजाद औरत के लिए हमने क्या पढ़ा था, मैंने हल्का सा बताया था कि उसे क्या करना है, अगर वो जिना करेगी तो क्या किया जाएगा, 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए जलावतन किया जाएगा। तो इसको सिर्फ निस्फ कोड़े मारे जाएंगे, इसको क्या किया जाएगा, निस्फ कोड़े मारे जाएंगे। तो इसका आजाद औरत के बदले में इसकी सजा आधी रखी गई है। यह सवाल आया भी था पेपर में सूरत नूर के, हाँ भूल गए लेकिन मुझे तो याद है। तो आजाद औरतों की सजा की निस्बत लोंडी की सजा कितनी है, निस्फ, आधी। यानी उसको कितना मारा जाएगा, 50 कोड़े मारे जाएंगे। इसकी दलील मैं आपको हदीस से दिखाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लोंडी ने जिना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को हुक्म दिया कि मैं ऐसे कोड़े लगाऊं, यानी अली को हुक्म दिया कि इसे कोड़े लगाओ। मैंने उसे देखा तो वो हालत नफास में थी। नफास किसको कहते हैं, ये हैज एक अलग चीज है। नफास होता है एक्स्ट्रा, जैसे मिसाल के तौर पर 7 दिन आपके पीरियड्स के हैं, 7 दिन से 9 दिन हो जाते हैं, 11 दिन हो जाते हैं, आपकी रूटीन चली आ रही है कि आपको हमेशा 7 दिन में आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन साल, 2 साल, 1.5 साल, 4 साल के बाद आपका अचानक 7 दिन से ज्यादा बन गए, 15 दिन हो गए, आप साफ नहीं हो रहे, तो आप उससे ये नहीं समझेंगे कि वो हैज है। हैज में तो नमाज माफ है, नफास में नमाज माफ नहीं है। अगर 7 दिन से ऊपर चला जाता है तो फिर आप वही 7 दिन वाले दिन गुस्ल करेंगे। अभी आपका खून जारी है तो वो खून, उस खून के साथ आपको नमाज माफ नहीं है। वो क्या है, आपका नफास है।
یعنی اندر ایک بیماری شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیریڈز کے ڈیٹس ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ 15 دن ہو گئے، وہ 20 دن ہو گئے، وہ زیادہ بڑھتے گئے، تو اس کو کہتے ہیں نفاس کی، اور نفاس کی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابیہ کے بارے میں کہ اس کو تو نفاس کا اتنا خون آتا تھا کہ وہ اپنے چارپائی کے نیچے برتن رکھ بیٹھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی بھر جاتا تھا، یعنی اتنا اسے خون جاری رہتا تھا۔ تو یہاں نفاس والی عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اسے ایک بیماری تھی، اسے اللہ کے نبی نے کوڑے مارنے کا حکم دیا کیونکہ لونڈی تھی، نصف کوڑے لگنے تھے، تو نفاس کی وجہ سے دیکھا انہوں نے کہ وہ تو نفاس میں ہے حالت میں، تو علی کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میں اسے کوڑے لگا کر قتل نہ کر دوں، کیونکہ خون تو اس کا پہلے ہی بہ رہا ہے، کمزور تو وہ پہلے ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوڑے لگتے لگتے یہ مر جائے۔ بیمار صورت کو کبھی بھی سزا نہیں دی جاتی بیماری کی صورت میں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی کہتے ہیں، اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں اچھا کیا کہ اسے ابھی کوڑے نہیں لگائے، یعنی یہ لونڈی تھی جس نے غلط کام کیا تھا تو اسے نصف کوڑے 50 کوڑے لگنے تھے، لیکن نفاس کی وجہ سے ابھی اسے کوڑے نہیں لگائے گئے تھے جب تک کہ وہ اپنی بیماری سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عیاش کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکاری لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو نصف کوڑے انہیں لگانے پڑیں گے، نصف سزا دی جائے گی اس سے۔ تو یہ سرکاری لونڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے حکومت کے پاس کافروں کی عورتیں آ گئی لونڈیوں کی صورت میں تو ان کے پاس اسے سرکاری لونڈی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لونڈی کی مالک عورت ہے وہ ولی نہیں بن سکتی، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، یعنی نہ اپنا نکاح میں خود کر سکتی ہوں نہ میں کسی اور کا نکاح کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ عورت بدکار تو ہو سکتی ہے، نکاح شدہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے کورٹ میرج ہوتے ہیں نا، کورٹ میرج لوگ کر لیتے ہیں، وہاں پہ ولی نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، بھائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، عورت اپنا نکاح خود کرنے کے لیے لڑکے کے ساتھ گئی ہوتی ہے، اب وہ اس سے نکاح تو کر لیا ہے لیکن نکاح کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ اب میاں بیوی آپس میں حلال ہے، اگرچہ وہ ملاپ کرتے ہیں تو اس ملاپ کو زنا جانا جائے گا، اس کو حلال نہیں جانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی نہیں ہے، عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، تو عورت نے اگر اپنا نکاح خود کیا ہے تو وہ بدکار ہے، زانیہ ہے، وہ عورت مومن نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ اپنا نکاح خود ہی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی لونڈی کا نکاح کر سکتی ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے کوئی گناہ سے ڈرنے سے بچے۔ کس کے لیے؟ ایک آزاد مرد اگر ایک آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو لونڈی سے شادی کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عذاب سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ کون سا گناہ؟ زنا سے بچ جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم آزاد عورت کے بدلے میں لونڈی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے اور زنا کی طرف بھی نہیں جاتے، صبر کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اور بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہو رہی اور تم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہو تو مردوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ روزے رکھو تاکہ تم غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہاں پر بھی صبر بہتر قرار دیا ہے بنسبت لونڈی سے۔ اگر صبر نہیں ہوتا تو پھر کس سے شادی کر لے؟ لونڈی سے۔ آزاد نہیں مل رہی پھر لونڈی سے شادی کر لے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے سارے معاملات کو، سارے احکامات کو کھول کر بیان کر دے۔ کھول کے بیان کر دیا نا کہ آزاد عورت سے شادی کرو، آزاد سے نہیں کر سکتے، پھر لونڈی سے کر لو، لونڈی سے تمہارا کرنے کو دل نہیں چاہتا تو پھر تم کیا کرو؟ صبر کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے اور یہ بھی بتا دیا کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت بھی دے دی۔ کن لوگوں کی؟ یہاں پہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ انبیاء کی طرف،
ये जो इशारा है सुनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों की राय। तो इसमें इशारा किसका है? अंबिया और उनकी उम्मत के नेक लोगों की तरफ इशारा है कि तुम्हें उनके तरीके भी बता दिए गए कि वो कैसे जिंदगी बसर कर गए। वयतूब अलैकुम, और जो इससे पहले तुम गुनाह कर चुके उस पर तौबा इख्तियार करो। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमा दे। ये मेहरबानी है ना अल्लाह ताला की कि कैसे करना है, कैसे करना है, किस तरह से निकाह करना है, किससे करना है, ये सारे खोल के अहकामात बताने का मकसद अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर शफकत के साथ पेश आए कि ऐसे ऐसे अहकामात के ऊपर अमल करो। अन यतूबा अलैकुम, और तुम लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते थे, यानी कि अय्यतुबा अलैकुम कि तुम तौबा करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवाती, और जो लोग के ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो इरादा रखते हैं अन तमीलू मैलन अज़ीमा, तुम्हें भी सीधे रास्ते से हटा दे। अब देखें, जो मुत्ता करते हैं, जो गलत तरीके से निकाह करते हैं, 4 दिन अपने पास रखते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और जो कोई ऐसा कर रहा है वो तुम्हें भी अपनी तरफ लगाने की कोशिश करेगा, सीधे रास्ते से हटा देगा। लो जी, ये तो निकाह करना मुश्किल है और जिना बड़ा आसान है, और मैं तुम्हें औरतें दिला देता हूँ, और मैं तुम्हें फलां औरत के पास रात गुजरवा देता हूँ, अब ये बड़ा आसान है। ये लोग खुद ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो तुम्हें भी सीधे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए सीधे रास्ते खोल खोल कर बता दिए कि अगर तुम्हारा आजाद से शादी नहीं हो सकती तो फिर लौंडी से शादी कर लो, जायज तरीके से हलाल करो, गलत तरीके से उसे अपने लिए जायज ना करार दो। तो यहाँ पर ये जो ख्वाहिश रखते हैं, गलत ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, इनसे मुराद है यहूद नसारा, मजूसी, कम्युनिस्ट। आपको पता है कि बगैर निकाह के वो किसी के साथ भी रातों को गुजारते हैं। आज फलाम बॉयफ्रेंड, वहां क्या होता है, 14 साल की बालिग होती है बच्ची, लड़की बालिग होती है, माँ बाप उसे क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं। ये मैं तुम हमारी बेटी नहीं हो, अब जाओ जहां मर्जी है रहो। अब जाहिर बात है उसने रात गुजारनी है, रात गुजारने के लिए जगह भी तो उसे चाहिए। उसने किसी भी लड़के को बॉयफ्रेंड बना के उसके घर चली गई, उसके साथ रात गुजार ली, कोई निकाह नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या है? सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी है। अब वो क्या करते हैं? बस ठीक है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, 4-4 साल, 2-2 साल, 4 महीने, जब उनसे दिल भर गया तो उन्होंने क्या करना है? उसको फारिग करके एक और लड़की लेके आनी। अब वो लड़की कहाँ जाएगी? किसी और लड़के के साथ बॉयफ्रेंड बनाने लग जाएगी, किसी और लड़के के साथ अपने ताल्लुकात शुरू कर देगी। यानी वहां माँ बाप अपनी बेटी को खुद ही छोड़ देते हैं, अब तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। कोई निकाह नहीं होता, ऐसे ही घर से निकाल देते हैं, जाओ खुद कमाओ खाओ। और फिर वो जो लड़की लड़का आपस में ताल्लुक बना भी रहे होते हैं तो वो लड़की अपना खर्चा खुद करती है, लड़का अपना खर्चा खुद करता है। कोई नहीं, इकट्ठे रह रहे हैं, मियाँ बीवी का मामलात भी हल कर रहे हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी नहीं है, उसे निकाह मुद्दा ही समझ लें जो उन्होंने किया हुआ है। भाई एक मुद्दत तक हम इकट्ठे रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, फिर उसके बाद तुम किसी और के पास चली जाना, ये वो सब कुछ कर रहे हैं। और सरेआम सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालना, एक दूसरे के साथ बोसो किनार करना, ये सब चीजें वो अपने लिए जायज समझते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं तुम्हें भी सीधे रास्ते से हटाते हैं। और हमें भी उन्होंने क्या किया? 8 मार्च आने वाला है ना, 8 मार्च को क्या कहते हैं? हकूक़े निस्वा के नाम पे आजादी मार्च करते हैं कि औरत को आजादी दो, औरत खुद कमाए, औरत खुद खाए, औरत सब कुछ खुद करे, औरत को कैद ना करो। ये खुद ख्वाहिशात की पैरवी करके गलत रास्तों पे चलते हैं और मुसलमानों को भी गलत रास्तों पे चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपने अपने मुल्कों के अंदर कौमे लूत की कौम कौन सा काम करती थी? बजाय औरतों से ताल्लुक बनाने के वो मर्दों को मर्द के साथ शादी करता था, मर्द के साथ ताल्लुक बनाता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो औरतों को छोड़ के मर्द भी लड़के आपस में बैठ के गलत फेल सर अंजाम देते हैं, तो तुम्हें भी इन कामों की तरफ लगाते हैं। और आपको पता है कि ये इलेक्शन होने से पहले हमारी मुसलमान हुक्मरान भी इस कानून को पास कर रहे थे कि अगर कोई लड़का लड़के के साथ निकाह करना चाहे तो गुनाह नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। और यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम सीधे रास्ते से ना हटो। सीधा रास्ता क्या? अगर तुम्हें जरूरत है बजाय मर्द के, बजाय आजाद औरत के, लोंडी से निकाह करके शर्म तरीका अपनाओ, गलत तरीके से तुम ये अपने लिए हलाल ना बना लो। तो यहाँ तक कि कुछ मुमालिक में तो कौमे लूत के कानून को भी नाफिज करके जायज करार दिया गया, हलाल करार दिया गया कि अगर 2 दोस्त आपस में निकाह कर लेते हैं तो जायज है, ये जाएं जो मर्जी है करें आपस में, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह 2 औरतें भी आपस में जो मर्जी है करें कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये गुनाह और मना कर दिया है।
युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का करे। कौन सा बोझ? हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, गुनाहों में वैसे भी पूर डूबे हुए हैं। अल्लाह ताला ये आसानियां पैदा करके हमें गुनाहों से बचाना चाहता है, गुनाहों का बोझ कम करना चाहता है। और दूसरी सूरत में सख्तियां पैदा नहीं करता, बल्कि सख्तियों के साथ उसने आसानी पैदा करके तब भी हमसे बोझ हटा दिया, तब भी हमसे क्या किया? आसानी पैदा कर दी। तो ये दो बातें इसमें आती हैं। एक, बोझ हल्का करने से मुराद कि अगर अल्लाह ताला ने आजाद औरत के बदले में लोंडी से निकाह का हुक्म ना दिया होता तो फिर क्या करना था? गुनाहों का बोझ बढ़ जाना था, गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया। दूसरी सूरत में अल्लाह ताला क्या कहता है कि ये जो आसानियां अल्लाह ताला ने पैदा की हैं ताकि तुम सख्तियों से बच जाओ। यानी अब जब मुसलमानों को पता चलेगा कि इसने निकाह करना ही करना है, इसको तो कोई नहीं मिल रहा, मैं जैसे मर्जी इससे अपनी ख्वाहिशात अपनी बातें मनवाऊंगी तो ये मजबूर होकर मान जाएगा, तो ये उसके ऊपर क्या हो जाएंगी? सख्तियां। तो अल्लाह ताला सख्तियों से निकालना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने लोंडी से निकाह की इजाजत दे दी। ये अल्लाह की तरफ से आसानी है, दीन में कोई सख्ती नहीं है। जो लोग कहते हैं ना दीन बड़ा मुश्किल है, बल्कि अल्लाह ने क्या कह दिया? दीन में कोई सख्ती नहीं है, दीन हल्का है। अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया। क्यों? वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, क्योंकि इंसान है ही कमजोर। मैं अपने आप को गाने से बचाना चाहती हूँ, बाज़ औक़ात गाने लगे होते हैं तो बच नहीं पाते, है ना कमजोर हम। तो इसी तरह मैं अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहती हूँ लेकिन बचा नहीं पाती। तो अल्लाह ताला कहता है इंसान कमजोर है, उसको गुनाहों से बचने के रास्ते मैंने खुद बता दिए कि अगर ये गुनाह हो रहा है तो उस गुनाह से बच के तुम सीधा काम कर लो। तो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है। दूसरी हदीस में आता है, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक पूछा जो हराम नहीं थी, लेकिन उसके पूछने के और उसके सवाल करने की वजह से वो हराम करार दे दी गई। यानी मिसाल के तौर पर जब आपको पता है कि जैसे मैंने भी बताया कि फतह मक्का के मौका पर खैबर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गोश्त खाने से मना कर दिया। अगर वो उससे पहले कोई पूछ लेता तो वो हलाल था ना। अगर कोई पूछता ये हलाल है या हराम है, बार बार आकर पूछता, तो वो उसके सवाल करने की वजह से हराम हो जाता। तो फिर अल्लाह ताला के नबी क्या फरमा रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुजरिम शख्स है। क्यों? एक चीज हलाल थी लेकिन वो सवाल कर करके लोगों के लिए मुश्किल डाल दी, उसको हराम करार दिया। तो जो बात अल्लाह ने बता दी है उसके ऊपर अमल कर लें, जो बात अल्लाह ने नहीं बताई उसको खुद खरीद कर अपने लिए हराम ना करें। जो हराम है वो वाजिया है, जो हलाल है वो भी वाजिया है। अपनी मर्जी से बार बार सवाल करके एक चीज हलाल होते उसको अपने लिए हराम ना कर दें। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को कमजोर बनाया है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आसानियां भी दी हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।